We started with a new chapter in the last session, और अगर आपको याद होगा तो we started with structure of atoms and nuclei. तो पहला पार्ट जो है इस चैप्टर का that is structure of atoms basically. Now, as you remember, we started with different models of atoms. उसमें सबसे पहला मॉडल था that was given by John Dalton. Or it is long back 1808, and according to John Dalton, all the matter is composed of hard, small and indivisible particles. इसका मतलब आप मैटर को ब्रेक करते जाओ और अल्टीमेटली व्हाट विल लेफ्ट इज एटम. तो एक मैटर को आप ब्रेक करते गए तो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एटम. और एटम का मतलब ही ये होता है इट इज इंडिविजिबल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. So John Dalton, he gave a basic model of atom. All the matter is composed of small, hard and indivisible particles known as atoms. Then अगर दो atoms basically if two atoms they combine they form molecules. Molecules are formed by combination of atoms. Combination of atoms. So two atoms come together to form a molecule. That is the basic idea behind this. और बाद में फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अलग-अलग एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में. as you know there are more than 114 elements. तो अकॉर्डिंग दैट टाइम ऑफ कोर्स उस टाइम पे 114 या उससे ज्यादा पता नहीं थे, but limited number of atoms were known. So what is said कि different types of elements have atoms of the different type. Atoms of different element. Atoms of different element has different size and shape. Different size and shape. Not shape, but I can say mass. Different size and mass. Right? तो ये बहुत बेसिक सा मॉडल था where you cannot divide matter after certain level. तो जो आखिरी में बचेगा those particles are called as atoms. Two or more atoms come together to form a molecule. Atoms of different elements has different size and mass. For example, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो what is different? Just the size and mass. This is what was Dalton's theory. And then there was another theory. Next was J.J. Thomson. तो थॉमसन मॉडल जो था it was around 1897 proposed and accepted was around 1903. तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, और अगर आपको याद होगा ये मॉडल भी एक्सीडेंटल है. मतलब थॉमसन व्हाट ही वाज डूइंग इज he was doing some experiment with glass tube, evacuated glass tube. So J.J. Thomson was doing some experiments with evacuated glass tubes. और इस evacuated glass tube में he kept two electrodes. So there are two electrodes and these two electrodes were maintained at high potential difference. So when these electrodes were maintained at high potential difference, यहाँ पे इसको बोलते हो एनोड and this is cathode. तो एनोड के पीछे जो ग्लास है, all of a sudden it was noticed that there are small glow मतलब flashes of light. So when he was performing some experiment with evacuated glass tube, उसमें दो electrodes हैं, and when he maintained these two electrodes at a very high potential difference, small flashes of light were observed from glass behind anode. So initially he thought that maybe ये जो cathode plate है, it is emitting some kind of rays. And after detailed study of these rays, it was found out that these are not rays, but these are negatively charged particles. Or Thomson called these particles as electrons, right? So this was the first time we knew
that atom can further be divided and atom is made up of negatively charged particles. अभी तक पॉजिटिव की बात नहीं है, पॉजिटिव अभी आएगा. So people start asking, पहले तो हम बोलते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और वो डिवाइड नहीं हो सकता, बट देन यू से देयर इज इमिशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? देन ही सेड कि पॉजिटिव चार्ज भी है, देयर इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, बट द थिंग इज पॉजिटिव चार्ज इज लाइक इट इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर. व्हाई सॉलिड स्फीयर? देखो कभी भी साइंस में जो भी प्रोग्रेस होते हैं वेग नहीं होता है, इट हैज सम लॉजिक बिहाइंड इट. तो आइडिया ये था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इमिटेड, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन विल कम, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज ही क्यों इमिट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं इमिट हो रहा है? सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन ही सेड मे बी दिस पॉजिटिव चार्ज इज हेवी एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर. तो हेवी है इसलिए इट इज नॉट इमिटेड, so electrons are lightweight and hence they are emitted. So he proposed this model, and according to Thomson model, positive charge consists of, positive charge is like plum. I gave you this example. आपको पता है what is plum? I told you hide and seek biscuit. तो जब आप वो hide and seek biscuit देखते हो या फिर any cake, उसमें cherries are embedded. तो he said कि positive charge is like solid sphere like a plum, और इस पे electrons are uniformly distributed like puddings. तो इस मॉडल को नाम दिया गया plum pudding model. So you have positive charge spread in a big region. When I say big मतलब atomic level पे big, right? So there is this positive charge which is spread, and then you have negative charges embedded in this. So this model was called as plum pudding model. Okay. Then obviously जब नया मॉडल आता है तो आपको जो ऑब्जर्व्ड फेनोमेना है that model should be able to explain observed phenomena. ये हमने वेव थ्योरी में भी देखा है. वेव थ्योरी में जब सबसे पहला थ्योरी आया था कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, तो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फ्यू ऑब्जर्व फेनोमेना. फिर आया उसके बाद यूजेन्स वेव थ्योरी, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसा आर्ग्यूमेंट था. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. तो सन से अर्थ तक लाइट कैसे आएगा? तो एक हाइपोथेटिकल मीडियम वाज अज्यूम्ड, ईथर, जो कभी मिला ही नहीं. तो whenever a new theory comes, based on the assumptions of the theory, you have to first prove observed phenomena. For example, यहाँ पे in this case, what this model could explain, जब ये मॉडल आया तब ऑलरेडी पता था कि आयोन्स जैसा कुछ होता है और आयोन्स एंड आयोन्स मिलके आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं. So when this model was proposed, this model could satisfactorily explain formation of ions and ionic compounds. क्योंकि आयन बनने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. अगर इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन गया तो आयन बन जाएगा. तो इट कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ions and also ionic compounds. Failures it could not explain observed hydrogen spectrum. तो जो हमको हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रा मिलता है could not explain, and it could not explain few more things. तो by the way, इसके बाद के जो मॉडल आए बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है रुदरफोर्ड, तो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट. तो इन दैट केस, एज यू नो, नेक्स्ट मॉडल वाज रुदरफोर्ड्स मॉडल. So Rutherford's model में what we saw, and we will see that again in detail today. So next model, which is Rutherford model. So Rutherford made two of his students to work, और आपको पता है he proposed an experiment जिसको बाद में हमने नाम दिया Geiger-Marsden experiment. So what they did, they took a gold foil. They took a gold foil, और इस gold foil पे they made alpha particles to bombard. तो यहाँ पे they took a source of alpha particles, and I told you yesterday why gold foil. तो मैं वापस रिपीट करता हूँ why gold foil, क्योंकि गोल्ड का जो
न्यूक्लियस होता है वो हेवी होता है, बल्कि होता है, इट हैज गुड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो होगा क्या, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, और क्योंकि ये हेवी न्यूक्लियस है, और जब अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, और आपको पता है कि हीलियम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, गोल्ड का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो व्हेन दीज टू इंटरैक्ट, क्योंकि होगा क्या, अल्टीमेटली हमने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, ये अल्फा पार्टिकल से जो सोर्स से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, दे आर मेड टू bombard, they are made to hit this gold foil। तो जब bombardment होगा, इंटरैक्शन होगा, तो जब इंटरैक्शन होगा, यू सी, अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस लाइट होता मतलब इसका अगर मास कम होता, तो वाइल इंटरैक्टिंग, जब इन दोनों में इंटरैक्शन होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो ये खुद भी डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे थे, इस गोल्ड फॉइल के बिल्कुल पीछे यू हैड अ स्क्रीन, राइट, और फिर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप था, और ये जो स्क्रीन है, इट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब जब भी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हिट करेगा तो फ्लैशेस ऑफ लाइट आर प्रोड्यूस्ड, और हम डिटेक्ट कर रहे थे फ्लैशेस ऑफ लाइट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू विल कम टू नो लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग पहले समझ लो, अगर गोल्ड का मतलब यहाँ पे गोल्ड की जगह पे कुछ और लेते, तो वाइल इंटरैक्टिंग दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता। इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर मिल नहीं सकता है। इमेजिन, देखो थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। इमेजिन आपके पास एक मटेरियल है, और उस मटेरियल में आपको ये देखना है कि हाउ एटम्स आर अरेंज्ड, और एटम में हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज अरेंज्ड। न्यूक्लियस तो ये वर्ड आया ही बाद में, बट जस्ट टू टेल यू हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अरेंज्ड। तो व्हाट यू डू इज यू फायर समथिंग, एंड उसके पीछे स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे जो पैटर्न बनता है उस पे से आप बताते हो कि आई एम गेटिंग दिस पैटर्न, मतलब यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगा, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इंटरैक्शन में खुद न्यूक्लियस ही शिफ्ट हो गया, तो यू गेट रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए दे टू गोल्ड न्यूक्लियस इज बल्कि हेवी, राइट। तो क्या होगा, जब ये अल्फा पार्टिकल इंटरैक्ट करेगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिव, व्हेन इट विल इंटरैक्ट दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाएगा, लेकिन इसका ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, इट विल जस्ट shift a little bit। Good, so that is why gold foil was taken here। Then I told you कि the thing is, कोई भी source हो, any source of either particle or light, it emits particle or light in all possible direction। तो ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा अल्टीमेटली, इमेजिन अगर ऐसा लेता हूं मैं, just for an example, if we take it like this, okay, now if I take it like this, in this case what is going to happen, so to collimate मतलब to bring all the alpha particles in same direction। so what we did was, हमने यहाँ पे मतलब उन्होंने गीगर्स एंड मार्सडेन, what they did was to use a lead brick। यहाँ पे एक लीड का ब्रिक यूज कर दिया। लीड का ब्रिक क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इवन इफ सम अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड इन अदर डायरेक्शन, दे विल बी रिपेल्ड, और अगर नीचे आने की कोशिश करेंगे तो दे विल बी रिपेल्ड अगेन। तो यहाँ पे दो लीड के ब्रिक्स यूज करके दे कॉलिमेटेड। बाय द वे, कॉलिमेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग ऑल द एनर्जी इन अ सिंगल बीम। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, अगर फोटॉन्स होंगे तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है, टू ब्रिंग ऑल द अल्फा पार्टिकल्स इनटू सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कॉलिमेशन। तो ये कॉलिमेट करने के लिए दे हैव यूज्ड लीड ब्रिक्स। नाउ इंटरेस्टिंगली, व्हाट वी एक्सपेक्ट, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमारे पास बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे which were going and hitting the target is gold foil, और इसके पीछे है स्क्रीन, राइट। तो what we were expecting, obviously आपको पता है, according to
Thomson's plum pudding model, positive charge is in the form of solid sphere, right? तो इसका मतलब ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये यहां से पेनिट्रेट तो हो नहीं सकते. हाउ कैन समथिंग पेनिट्रेट सॉलिड स्फीयर? तो ये अल्फा पार्टिकल सॉलिड स्फीयर से पेनिट्रेट नहीं होने चाहिए. इसका मतलब सबसे कम डिटेक्शन आपको सेंटर में मिलेगा, राइट? बट हुआ एग्जैक्टली उल्टा. व्हाट यू गेट इज यू गेट मोस्ट नंबर ऑफ डिटेक्शन राइट एट द सेंटर. मतलब क्या? इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनस्कैटर्ड. ये कब होगा? ये तब होगा when atom in reality is almost empty, right? तो atom in reality is almost empty मतलब positive charge cannot be in the form of solid sphere, right? तो पहला number 1. So first observation here is really important. तो यहाँ पे the positive charge is not in the form of solid sphere. It is actually concentrated in a very small region. तो ये पहला कंक्लूजन. नंबर 2, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. अगर चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़े स्पेस में है तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाता है. इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स है दे कैन नॉट बी स्कैटर्ड एट हाई एंगल, राइट? इसका मतलब स्मॉल एंगल पे स्कैटरिंग मिलना चाहिए. मतलब 5-6 डिग्री 10 डिग्री से ज्यादा पे आपको डिटेक्शन नहीं मिलना चाहिए अगर पॉजिटिव चार्ज ये प्लम जैसा है तो. सो इफ द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बिग रीजन यू शुड नॉट गेट डिटेक्शन एट लार्ज एंगल्स. लेकिन फिर भी इवन इन दैट केस यू सी ये इस एक्सपेरिमेंट में 1 in 8,000 alpha particles were scattered at 90 degree. तो हाई एंगल स्कैटरिंग भी हुआ जो नहीं होना चाहिए. अगर प्लम पुडिंग मॉडल है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ मतलब प्लम पुडिंग मॉडल नहीं है. देन ऑफ कोर्स यू शुड नो अगर किसी अल्फा पार्टिकल को बैक स्कैटर होना है, बैक स्कैटर मतलब स्कैटरिंग बाय 180 डिग्री, राइट? तो इसके लिए भी the positive charge of the target should be concentrated in a very small space. क्योंकि इस केस में उसी exactly in line ये अल्फा पार्टिकल मूव होगा और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन की वजह से वो वापस आ जाएगा. मतलब बैक स्कैटरिंग 180 डिग्री स्कैटरिंग नहीं मिलना चाहिए था लेकिन वो भी मिला 1 in a million. So 1 in a million particles, अल्फा पार्टिकल्स were back scattered, right? तो which means कि जो थॉमसन बोल रहा है वो गलत है, राइट? सो conclusions are this. Number 1, atom consists of a tiny core. So from Rutherford model, what conclusions you have? And well, by the way, before I go to conclusion, एक important चीज और है. Looking at number of particles scattered at different angle, क्योंकि आपको you see आप देख रहे हो ये जो डिटेक्टर है it is in the form of sphere basically. तो ये डिटेक्टर spherical shape में है, something like this. तो what they did, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया. they checked exactly 0 डिग्री पे कितना स्कैटरिंग, 1 डिग्री पे कितना स्कैटरिंग, 2 डिग्री पे कितना स्कैटरिंग, 5 डिग्री पे कितना स्कैटरिंग, 180 डिग्री पे कितना स्कैटरिंग. तो टोटल कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, और ये ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज. ओके, वी विल नॉट गो इनटू मैथमेटिक्स नाउ क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है. दे केम टू अ कंक्लूजन कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो एक बहुत स्मॉल रीजन में है, इसका जो डायामीटर होगा दैट इज 10 पावर -15 मीटर, which is 1 femtometer basically. Dalton and then followed by Thomson. According to their theory, the size of atom is around 10 power -10, 1 angstrom. और क्योंकि थॉमसन ने तो बोल ही दिया
कि बेसिकली एटम इज पॉजिटिव, उसके ऊपर छोटे छोटे नेगेटिव चार्जेस, विच मीन्स जितना साइज एटम का उतना ही साइज पॉजिटिव चार्ज का। तो कितना होना चाहिए था? 10⁻⁻10। बट फ्रॉम हियर, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल observation and analysis of the observation, you get positive charge to be concentrated in a space of 10⁻⁻15 meter, which is 10⁵ less compared to this, right? और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इन अ वेरी स्मॉल रीजन, इसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। तो थॉमसन was the first to introduce negative charges, electrons, and Rutherford was the first to introduce the idea of nucleus, right? So this is really important. Then some conclusions from this experiment, and we'll also look at failures, and then we will go ahead with next theory. So number one, atom consists of a small and heavy core, heavy positive core called as nucleus. Number two, look at this experiment of Thomson. क्या हो रहा था? What was emitted? Negative charges. Why not positive? Because positive charges are heavy, right? इसका मतलब एटम का मैक्सिमम मास कहाँ पे है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। सो all the positive charge and almost कितना? around 99.9% of the mass of atom is inside a nucleus, राइट? क्योंकि जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पे ज्यादा मास होगा। और अब तो हमको पता ही है, 2-3 दिन से हम एग्जांपल्स भी सॉल्व कर रहे हैं। वी नो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास। गुड। देन एंड ऑब्वियसली you cannot just keep on saying something and you don't expect people to believe you. तो फिर बाकी लोगों ने पूछा, ओके ठीक है, where are electrons? पॉजिटिव चार्ज की तो बात तुमने कर ली, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए थे, राइट? तो he said that electrons are in circular orbit. So electrons are orbiting around the nucleus with nucleus at its center. Just like planets of the solar system revolve around sun. So electrons are orbiting in circular orbits around the nucleus, या फिर with nucleus at its center, circular orbits with nucleus at its center, just like planets revolve around sun. Okay, then obviously that time अगर आप experimental justification नहीं दे सकते हो तो you start comparing with something else which you know, analogies. So you already know that time they already knew that planets are revolving around sun. Circular orbit नहीं था, elliptical था, but anyways. Then also fourth conclusion, the size of nucleus is 10⁻⁻15 meter, which is 10⁵ order less than size of atom. तो आपको पता है size of atom कितना है? 10⁻⁻10 meter. So these are the 4 important conclusions which were made by Rutherford, right? और obviously आखिरी तो आप बोल ही सकते हो, वो आपको पता ही है
एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल which means total positive charge inside nucleus and total negative charge of electrons is equal. जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। गुड। देन failures, and as I told you, the people will not just listen to you, हाँ ऐसा है वैसा है, they start asking you question. Then one of the question was that according to Rutherford's model, पॉजिटिव चार्ज ये एक छोटे से कोर में है जो राइट एट द सेंटर है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट अराउंड दिस न्यूक्लियस। चलो मान लिया। देन अगर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सीलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। मतलब स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। और आपको पता है कि इस केस में एक्सीलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर, जिसको आप सेंट्रिपिटल बोलते हो बाय द वे, राइट। द पॉइंट हियर इज, आपको क्लासिकल थ्योरी पता होना चाहिए। यू शुड नो एनी एक्सीलरेटेड चार्ज emits electromagnetic radiation, emits energy basically, right? कोई भी चार्ज, कोई भी पार्टिकल नहीं, चार्ज, राइट। तो अगर इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग फॉर सम इंटरव्यू, किसी ने पूछा हाउ डू यू प्रोड्यूस फोटॉन्स और हाउ डू यू बेसिकली प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसको धक्का दे दो, पुश इट। when it starts moving it is changing velocity, and when it accelerates it emits energy, right? तो अब क्वेश्चन ये आया कि अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड है, और अगर चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है तो इट शुड कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी, राइट। बट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन खुद का एनर्जी दे रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन खुद का एनर्जी देगा मतलब इमिट करेगा तो उसका एनर्जी कम होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर ही चले जाएगा, इट विल स्पाइरल इनसाइड न्यूक्लियस। इसका मतलब दिस मॉडल क्रिएट्स अ डाउट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो फिर कौन सा एटम? नथिंग इज लेफ्ट, राइट। तो इफ electrons are in circular orbit and that motion is accelerated motion, and any accelerated charge, accelerated electron must emit energy continuously, and electron when emitting energy is losing energy, so it will basically spiral in. Number one, मतलब atom cannot be stable. Number two, अगर एक कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो आपको एक एटम से जो स्पेक्ट्रा मिलता है, स्पेक्ट्रा मतलब बेसिकली एनर्जी इमिटेड, तो आप क्या करते हो? आप चेक करते हो कि कौन सा रीजन में कितना एनर्जी इमिट हुआ। कौन सा रीजन मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिकली गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड सो ऑन सो फोर्थ, रेडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तब इतना डिटेल हमको पता नहीं था, वी डिड नॉट न्यू most of the part of the spectrum. हमको पता क्या था? विजिबल, मे बी यूवी, मे बी, ओके। तो हमको जो पता था विजिबल, क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं, इसलिए विजिबल पता था तब, एट दैट टाइम व्हेन दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड। एंड ऑब्जर्वेशंस, आप आगे सीखोगे
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लीमेन बाद में पाश्चन ब्रैकेट फुंड। तो सबसे पहला डिटेक्ट लीमेन नहीं हुआ, सबसे पहला डिटेक्ट हुआ बाल्मेर सीरीज, क्योंकि बाल्मेर सीरीज होता है विजिबल रीजन में, और बाल्मेर सीरीज मतलब हाइड्रोजन एटम जो स्पेक्ट्रा इमिट करता है उसमें जो अब हम बाल्मेर सीरीज बोलते हैं, तब तो सिर्फ पता ही वो था, राइट। तो इफ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, you will get a line, then there is nothing, then you get another line, and then there is nothing, and then you get another line, and then there is nothing. तो ये जो स्पेक्ट्रा है इसको बोलते हो लाइन स्पेक्ट्रा। ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक लाइन है, एक वेवलेंथ है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा वेवलेंथ, फिर कुछ नहीं है, फिर तीसरा वेवलेंथ है। लेकिन अगर मान लो रुदरफोर्ड का मॉडल सही है, ऐसा मान लेते हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि रुदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, और अगर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कंटिन्यूअसली इमिट करेगा, तो हमको स्पेक्ट्रा तो ऐसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। So these were the two failures, and Rutherford said, "I don't know." ऐसा है, ऐसा क्यों है? Stability, I cannot explain. So then came the next model, which is Bohr's model. Niels Bohr, he basically explained the stability as well as line spectra. इसने तीन थ्योरी को कंबाइन कर दिया, क्लासिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म and Planck's quantum theory of radiation. Okay, so you know electromagnetism में electrostatic forces भी आते हैं, Coulomb force 1/4πε0 q1 q2 by r square, ये भी यूज किया। Then he also used Planck's quantum theory, where Planck said photons are emitted in the form of small packets of energy, with each photon having energy of h nu, right? Good. And he proposed his theory based on three postulates. So postulate number one, first postulate. So when first postulate is pretty simple. देखो, the idea here is, according to Rutherford said that you have electrons revolving around the nucleus in circular orbit. तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि किसी भी फोर्स का सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन मोर और लेस सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कौन दे रहा है? अर्थ का ग्रेविटी, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स due to earth is providing necessary centripetal force. Similarly, when you launch artificial satellites, वो तो perfectly circular motion में आप सेट करते हो normally. Special cases are something different, right? तो उस केस में भी जो artificial satellite है वो circular motion में है, तो what is required is centripetal force. किसने provide किया? Gravitation, right? तो हर एक केस में force का एक origin होता है। तो here postulate number one, he says electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. The necessary centripetal force due to for circular motion is provided by force of electrostatic attraction between the nucleus and the electron, right? So number one, electrons या फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो पोस्टुलेट है ये प्योरली बेस्ड था हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है ना? हाँ, गुड। इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, और बाद में जनरलाइज हुआ ये, बट स्टार्टिंग यहां से हुआ, बाद में फिर जनरलाइज किया, वो बाद में देखेंगे। सो इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम revolves in a circular orbit, with nucleus at its center. और remember one thing, हाइड्रोजन एटम के केस में तो न्यूक्लियस मतलब सिंगल प्रोटॉन ही होता है, there is only one proton,
except if you're talking about isotopes of hydrogen, deuterium and tritium, वो तब पता ही नहीं थे, तो don't worry. When this theory came, we knew only hydrogen basic form, one proton and one electron. So electron in a hydrogen atom revolves in a circular orbit with nucleus at its center. The necessary centripetal force, the necessary centripetal force for circular motion, is provided by force of electrostatic, electrostatic force of attraction. क्यों attraction? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. is provided by electrostatic force of attraction, between positive nucleus and negative electron. राइट. तो पहला एक डाउट रेज होना चाहिए आपके दिमाग में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्जेस आर एट रेस्ट, ये तो मूविंग चार्ज है, हाउ कैन यू अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक? कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई कर दिया यहाँ पे? कूलम्ब्स लॉ में बोलते हो ना, कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 at rest, the distance between them being r, the force between the two charges will be 1/4 pi epsilon 0 अगर एयर में होगा तो, राइट. अगर एयर में नहीं होगा तो 1/4 pi epsilon 0 k is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 by r square. तो यहाँ पे पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ही नहीं, ये तो मूविंग चार्ज है. लेकिन वेट अ मिनट, अगर याद होगा तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे Q1 Q2 और r स्क्वायर. हाँ, तो डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स ही रह रहा है, कहीं पे भी वो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस इज ऑलवेज r, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा. ओके, देन let an electron revolving around the nucleus in a hydrogen atom, in a H atom with radius r and speed v as shown in figure. तो स्पीड बोला है मैंने, वेलोसिटी नहीं, स्पीड इज v, राइट. तो अगर आपको ये पता है अब, तो यू नो, देयरफॉर according to Bohr's first postulate, what you have is necessary centripetal force is given by electrostatic force, which is Coulomb force basically, electrostatic force. और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² by r, और 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2, लेकिन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E and on this is minus E, तो E into minus E is minus E square. हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रहे, माइनस का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखूंगा. 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 E into E by r square, इक्वेशन नंबर 1, राइट. तो Bohr did not change the idea of Rutherford. He said what Rutherford is saying is right. Electron is revolving in circular orbit around the nucleus with nucleus at its center, right. Necessary centripetal force is provided by force of attraction between proton, मतलब nucleus, and electron. Good. Then, as you know, ये accelerated motion है,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इमिशन। किसका इमिशन, एनर्जी का इमिशन, राइट। तो ये इसके बाद आया सेकंड पोस्टुलेट। He said, postulate 2, have you ever wondered, तो जब आप पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो खासकर जब आप, तो यू नीड टू थिंक, आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ही क्यों दिखाए जाते हैं? Why cannot be there orbit between two orbits? सोचा कभी, पहला ऑर्बिट फिर दूसरा ऑर्बिट, ऐसा बीच में एम्प्टी स्पेस दिखाते हैं, इसको फॉरबिडन ऑर्बिट बोलते हैं, या तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, या सिर्फ एनर्जी गैप भी बोलते हैं, राइट। तो द थिंग इज, पोस्टुलेट 2 टेल्स यू दिस रीजन। तो पोस्टुलेट 2 बोलता है कि यस, योर क्वेश्चंस आर करेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर इन सर्कुलर मोशन, this motion is accelerated, so electrons must emit energy continuously. But wait a minute, there are few orbits which are called as stable orbits. इलेक्ट्रॉन जब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा तब वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा. So there are few orbits in which electron can perform circular motion without emitting energy even if it is accelerated. इसको बोला stable orbit, allowed orbits, permitted orbits, right? So अब लोग बोलेंगे फिर ऐसे कौन से orbits हैं and how do you decide? तो he said that orbits in which angular momentum, किसका angular momentum? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि रिवॉल्व कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन. जो रिवॉल्व होगा उसी का एंगुलर मोमेंटम की बात होगी, न्यूक्लियस की नहीं हो सकती. न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है क्या? नहीं. सो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, permitted, in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. मतलब only those are allowed in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple मतलब h upon 2 pi, 2h upon 2 pi, 3h upon 2 pi, 4h upon 2 pi, so on so forth. तो n, where n is 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर. और कुछ बुक्स में इसको h क्रॉस बोला होगा, h upon 2 pi को. तो it tells you nh क्रॉस हम नहीं यूज करेंगे. सिर्फ गलती से कहीं आ गया तो समझ जाना h के ऊपर क्रॉस मतलब h को कैंसिल नहीं किया है, it's h upon 2 pi. Good. So these are the orbits which are allowed orbits, and when electrons are in this orbits, the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. ये second postulate था. So only those orbits are allowed. So only those orbits are allowed in which angular momentum L of electron is integral multiple of h upon 2 pi, right? तो ये पता होना चाहिए. और these orbits are known as stable orbits, or you can say permitted orbits, or you can say allowed orbits. So these orbits are known as stable or permitted or allowed orbits. Electrons, when in this orbit, do not emit radiation even when they are accelerated. पता है ना वो accelerated है ही. So electrons in stable orbit do not emit energy even though they are accelerated. Good. This is what you need to know. अब
पता तो लग गया हमको L इक्वल टू NH/2 पाई. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट, you have L equal to NH/2 pi, where N is basically positive integer, where N equal to 1, 2, 3, so forth. Now, अब आपको पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स याद होना चाहिए. Whenever a body is rotating or whenever a particle is performing circular motion, उस केस में एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया is given by L equal to I omega. Very good. But एंगुलर मोमेंटम, इसको मैं नंबर दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is given in terms of रोटेशनल या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं इसको. इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and angular speed omega s. Angular speed omega s L equal to I omega. और I क्या होता है? mr स्क्वायर. याद है कि आपको वो रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था. तो ये mr स्क्वायर, where m is mass of electron, r is radius of electron orbit, omega if you remember v by r. एक और एक गया, लिख देना यहाँ पे. since I is mr square and omega is v by r, तो ये आ गया mvr. अब तो पता ही है एंगुलर मोमेंटम mvr होता है. तो therefore it is mvr, right? So from equation number 2 and 3, it is mvr equal to NH/2 pi. Equation number 4. So this is an important result. ये काम में आया, ये हमको लगने वाला है. क्यों? क्योंकि अभी एक तो ऑर्बिट होगा नहीं. आपको पता है 2, 8, 18 so on so forth, तो there are different orbits. तो हर एक ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा. हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होगा, तो हमको एनर्जी भी फाइंड करना पड़ेगा. तो एनर्जी फाइंड करने के लिए उस इक्वेशन में रेडियस आता है, तो रेडियस का इक्वेशन लगेगा और रेडियस का इक्वेशन यहां से बनेगा. नंबर 2, यू सी वेलोसिटी, स्पीड आल्सो. थोड़ा सा अभी से कनेक्ट करते जाओ, बाद में तो मैं बता नहीं वाला हूं, बट यू नीड टू कनेक्ट. यू नीड टू नो वेलोसिटी इज डिसाइडेड बाय फोर्स. जितना फोर्स ज्यादा उतना वेलोसिटी ज्यादा. ऑफ कोर्स, वेरी ऑब्वियस. तो अगर इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग ऑर्बिट में है और ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से अलग अलग है, तो पहला ऑर्बिट सबसे पास में है न्यूक्लियस, तो फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स इज 1 by r स्क्वायर. तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा, दूसरे ऑर्बिट में कम होगा, तीसरे में और कम होगा, चौथे में और कम होगा. मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर. ऑफ कोर्स डिस्टेंस आल्सो ऑर्बिट नंबर, राइट? ये तो दिख ही गया यहाँ से. ये r को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो v is inversely proportional to r, distance from the nucleus, but it is also proportional to orbit number n, 1 by n, वो बाद में देखेंगे. Okay, where n is called as principal quantum number. It tells you that कौन सा orbit, you know, there are quantum numbers which give you complete information of atom. N, principal quantum number. Then you have L. L gives you orbital. S, P, D, F कौन सा है, right? Then ML gives you orbital magnetic moment. MS gives you spin magnetic moment. Anyways, we will not go into that details now. इतना पता होना चाहिए. Then comes the third part, third postulate. अब देखो ऐसा है कि पहले पोस्टुलेट ने बताया कि जो रदरफोर्ड बोल रहा है वो सही है.
दूसरे पोस्टुलेट ने रदरफोर्ड को डिफेंड किया, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि अरे रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रॉन शुड इमिट एनर्जी, तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। तो सेकंड पोस्टुलेट ने वो भी काम कर दिया। सेकंड पोस्टुलेट ने बोला नहीं ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसमें वो भले ही एक्सीलरेटेड है, वो एनर्जी नहीं इमिट करने वाला। तो नंबर 3, अगर एनर्जी इमिट नहीं हो रहा तो फिर हमको स्पेक्ट्रा कैसे दिख रहा है? हाउ डू यू सी एनर्जी कमिंग आउट? तो थर्ड इज energy is emitted by electron only when it jumps from higher energy level to lower energy level. So ये है third postulate of Bohr. So third postulate explains why do you see spectrum, why do you see lines coming out from atom, energy emitted by an atom. So when an electron jumps from orbit of higher energy to an orbit of lower energy, it emits energy or radiation in the form of packets, और पैकेट को हमने बोला था फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, राइट। ये फोटॉन वही फोटॉन है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया। तो एज आई टोल्ड यू, इसने तीनों ही यूज कर दिए। देखो पहले पोस्टुलेट में क्या यूज किया? नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय विच फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करेक्ट। देन नंबर टू classical theory, only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, classical theory. And then this third one is Planck's quantum theory. So let us say, let the electron be in nth higher orbit. अब थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, लेट द इलेक्ट्रॉन जंप, ऐसा बोलते हैं, लेट द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth higher orbit to pth lower orbit, and of course हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा। सो लेट En and Ep be the energy of electron in nth and pth orbit respectively. Therefore, according to third postulate, right? What is third postulate? Energy is emitted. कौन सा energy? Extra energy. So according to third postulate, the difference in the energy of the electron, in nth and pth orbit, is emitted in the form of photon. एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट होगा ना, ये याद रखना, बाकी काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में है तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट में है तो सम अदर वैल्यू हो सकता है, थर्ड में है तो सम अदर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम हो, नॉट पॉसिबल, राइट। सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। nth ऑर्बिट से pth पे आया, हायर से लोअर पे आया, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको देना पड़ेगा। तो En - Ep इक्वल टू
h nu, which is hc by lambda, which is hc by lambda. ये आ गया आपका, let us say equation number 5, right? So these three postulates give satisfactory explanation of stability as well as observed atomic spectra. Good, यहाँ तक क्लियर? तो अब ये बेस बन गया, अब हमको बाकी के रिलेटेड पैरामीटर्स फाइंड करने, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेडियस कितना, सेकेंड ऑर्बिट में तो उसका रेडियस कितना, थर्ड में तो उसका रेडियस कितना, सिर्फ रेडियस नहीं, वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, फिर सिर्फ वेलोसिटी नहीं, एनर्जी का भी इक्वेशन चाहिए, क्योंकि फिर हमको पूरा का पूरा ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना है कि अगर हमको बाल्मेर सीरीज में ये वेवलेंथ दिखता है तो यही क्यों दिखता है, व्हाई डोंट यू सी सम अदर वेवलेंथ? ओके, तो वी विल स्टार्ट बाय फर्स्ट डिराइविंग रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स मॉडल. मैं आगे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ये अज्यूम्ड है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स मॉडल. तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल. आप जब आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट पूछा है तो क्या करेंगे? तो यही पोस्टुलेट यूज करेंगे. कहां से यूज करेंगे? अभी दो ऐसे इक्वेशंस आपको दिखते हैं, पहला पोस्टुलेट और दूसरा पोस्टुलेट, वहां पे आर यू सी इन बोथ इक्वेशंस, तो यू हैव टू यूज दिस. तो व्हाट यू कैन से इज फ्रॉम फर्स्ट postulate what you see is, क्या था इक्वेशन? mv square by r equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 a square by r square. ये एक गया, तो आपको मिल जाएगा v square equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 e square by mr. Let us say equation number 6. Similarly, from second postulate, if you see second postulate, कहाँ गया second postulate? Equation number 4, mvr equal to nh upon 2 pi. From second postulate, what you have is mvr equal to nh upon 2 pi. Therefore, v equal to nh upon 2 pi mr, right? This is equation number 7. So if you look at equation number 6, it gives you v square. Equation number 7 gives you v. तो ये v की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दो. तो substituting equation number 7 and equation number 6, या फिर इसको स्क्वायर करके दोनों को कंपेयर कर दो, एक ही चीज. You square this and compare, okay, that's the same thing. तो v स्क्वायर था तो nh अपॉन 2 पाई mr का स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर बाय mr स्क्वायर होगा. इसका स्क्वायर कर लेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर. सिम आ रहा है ना? पक्का? यस. नहीं तो सब कैंसिल हो गया, आर मिला ही नहीं, गायब. फिर क्या फाइंड कर रहे हो? कुछ नहीं. ओके, तो देन एक आर और एक आर यहाँ पे गया, उसके बाद 4 और 4 गया, पाई एंड पाई ऑल्सो कैंसल्स आउट, एक पाई और एक पाई भी गया यहाँ से, एंड एम, एक एम और एक एम. अब एक काम करो, इस आर को वहां शिफ्ट कर दो, ई स्क्वायर को यहाँ ले. तो आपने आर को शिफ्ट कर दिया, जस्ट शिफ्ट आर इक्वल टू, आर उधर गया, यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर. एक काम करता हूं मैं एन स्क्वायर को अलग लिख देता हूं फॉर सम रीजन. एच स्क्वायर नीचे पाई एम और ई स्क्वायर, पाई एम और ई स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू विल गेट. कुछ रह गया और समथिंग लेफ्ट? चेक कर लो एक बार. हाँ, एप्सिलॉन 0 विल गो वेयर? स्टे इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर?
न्यूमरेटर, तो एप्सिलॉन 0 ऐसा ही आना चाहिए डेफिनेटली. यू विल गेट दिस h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m स्क्वायर n स्क्वायर. करेक्ट, दिस इज व्हाट यू विल गेट. गुड. अब ये आ गया आपका रेडियस, लेकिन अब देखो रेडियस डिपेंड्स ऑन n, फिर n इज ऑर्बिट नंबर, तो इसको हम r suffix n बोल देंगे. तो दिस इज रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट. सो इक्वेशन नंबर 8, equation 8 gives radius of nth Bohr orbit, right? तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जो भी होगा, just put 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, right? तो अगर आप पहला बोहर ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हो, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, radius of first Bohr orbit, you will put n equal to 1. Put n equal to 1 in equation number 8. तो सिंपल है, r1 मिल गया, तो r1 equal to h square epsilon 0 upon pi m e square, और ये 1 square. Well, if you see, ये h constant है 6.6 into 10 power minus 34. epsilon 0 constant है, याद है क्या, 8.85 into 10 power minus 11. पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31, e 1.6 into 10 power minus 19. ये सब कांस्टेंट है. तो सब कांस्टेंट है, तो वैल्यू डालोगे तो r1 मिलेगा 0.511 एंगस्ट्रॉम आफ्टर पुटिंग ऑल दिस. एंड इंटरेस्टिंगली, इफ यू सी, इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल दो. ये 9 जब 8 के साथ क्लब करोगे, मतलब ये पूरा का पूरा, ये क्या आ गया, r1 आ गया. तो फ्रॉम 8 and 9 रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू r1 n स्क्वायर. मतलब रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब अगर सेकेंड ऑर्बिट का फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 2 स्क्वायर इज 4 into 0.2 point something, right? So this is how you obtain the radius of nth Bohr orbit. So in the next session, we will find out velocity and energy of electron in nth orbit.